آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 13ویں آیت۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے، ہاللیلویہ۔ اب ہم لوگ جس ٹاپک کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برا کی شادی آپ پہنچی، ہم برا جو کہ نبوت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے خود سے اپنے باپ کی مرضی کو بھی ظاہر کیا کہ شادی میری ہونے والی ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی نبوت کی کہ یہ جو ہے یہ دلہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی لفظ اپنے لیے استعمال کیا۔ ہم وہ بعد میں اس کلام کے دوران دیکھیں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں واضح پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جان دی۔ اب خداوند یسوع مسیح نے آسمان سے زمین پر اپنے باپ کی مرضی سے آئے اور انہوں نے جان دی، اور اس سے زیادہ بڑی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب خداوند یسوع مسیح نے پوری گہری کمپلیٹ محبت ہم انسانوں کے ساتھ رکھی ہے، لیکن ریٹرن میں کس انسان نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گہری کمپلیٹ محبت رکھی؟ کیا یہ ممکن ہوا؟ کیا ایسا ہوا؟ وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن جان دی، اور جان جو دی ہے وہ پوری دی ہے اور پوری محبت کی گئی ہے۔ جب جان دی جا رہی ہے، جیسے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ گواہی دی کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس کا مطلب دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے یسوع مسیح کو اپنی جان دینی پڑی، اور یسوع مسیح نے وہ جان اپنی دی۔ اب جن کے لیے خداوند جان دے رہے ہیں وہ لکھا ہے دنیا، اور یہاں پر لفظ لکھا جا رہا ہے دوست۔ اس کا مطلب ہے کہ جب جان دی جاتی ہے تو کسی رشتے کی وجہ سے جان نہیں دی جاتی، بلکہ محبت کی گہرائی، ترس اور رحم کی وجہ سے جان دی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شوہر ہی اپنی بیوی کے لیے جان دے گا۔ ہم اس کو اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو خدا کا، میں بہت زیادہ بار بار کلام سناتے ہوئے شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے یہ دنیا بنائی تاکہ ہم خدا کے کلام کو واضح طور پر سیکھ سکیں اور کوئی کانٹرڈکشن ہمارے اندر نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ کلام میں کیا لکھا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ کلام سے بنائی گئی ہے، اس لیے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی کہ آسمان پہ کچھ اور ہے اور زمین پر کچھ اور ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جان دی، ہم اس کو بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ دنیا میں سے سیکھتے ہیں کہ خدا نے جب یہ دنیا بنائی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولاد مشکل میں ہو یا بہت زیادہ تکلیف میں ہو یا اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو اور اس اولاد کی بیوی نہ ہو یا اس اولاد کا کوئی دوست نہ ہو یا اس اولاد کو بچانے والا اس کا بھائی نہ ہو، تو کیا دنیا میں ماں اس کے لیے جان نہیں دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتی، وہ اس کو بچانے کے لیے جان دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ماں کا رشتہ ہے۔ جان دینے والی صرف بیوی، شوہر نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں اپنے ذہن سے باتیں نکالنی ہوگی، کیونکہ محبت کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جدھر محبت گہری ہے وہاں پر آپ جان دے دیتے ہو۔ وہ دوستی یاری میں بھی لوگ جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس اولاد کے لیے ماں جان نہیں دے رہی اور اس کا باپ اس کو تکلیف میں دیکھتا ہے اور پتہ ہے کہ جان دیے بغیر میرے بچے کی خلاصی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس بچے کی خدا نہ کرے کڈنی فیل ہے، ہو سکتا ہے اس کا لیور ڈیمیج ہے، کچھ بھی ہے، اور یا اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، تو باپ کیا کرے گا؟ کیا اس کو بلڈ نہ دے گا؟ کیا اس کو اپنا کوئی آرگن جو ہے جو اس کو چاہیے اس کو ڈونیٹ نہ کرے گا؟ کرے گا، ضرور کرے گا۔ بے شک اس کی ڈونیشن کے بعد اس باپ کی جان چلی جائے تو یہ کیا ہے؟ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ بیچ میں کیا ہوا؟ میاں بیوی کا نہیں، محبت کا۔ تو جو جان دیتا ہے
वो वही देता है जिसके अंदर तरस, मोहब्बत, प्यार, शफकत आती है कि नहीं, मैंने इसको बचाना है और मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकता, मैं इसको तड़पते हुए नहीं देख सकता। जो इतना तरस खाता है वो ही अमल ऐसा करेगा और वो ही कर सकता है जिसके अंदर, उसके दिल के अंदर, उसकी रूह के अंदर इतने ज्यादा जज्बात मोहब्बत के हों। मैं फिर से बोल रही हूं, जज्बात मोहब्बत के हों। रिश्ते की बात नहीं है, यही एक पर्टिकुलर शौहर ही बीवी के लिए जान देता है, ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि हम सीख ही ये रहे हैं कि यीशु मसीह दुल्हा है, तो क्या कलीसिया दुल्हन है? कहां से है वो हम बाइबल मुकद्दस से देख रहे हैं कि कहीं से भी नहीं है। अब बाप अपने बेटे के लिए जान दे सकता है, माँ अपने बेटे के लिए जान दे सकती है। इसी तरह अगर माँ बाप बहुत बूढ़े हैं और वो अपने बच्चे के लिए ये तो जानते हैं कि उसके लिए जान देना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं बचेगा, या उसके लिए मुझे कोई प्रोटेक्शन रखनी चाहिए ताकि इसकी हिफाजत हो, और अगर वो खुद जान नहीं देता तो उसकी सोच क्या होगी कि ये इसको कोई बचाने वाला आ जाए, तो माँ बाप क्या करेंगे? अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी और का इस्तेमाल करेंगे और उसको कहेंगे कि तू इसकी खातिर जान दे दे। इसका मतलब है वो उसका भाई भी हो सकता है, वो अपने दूसरी औलाद को भी कह सकते हैं कि तू उसके लिए जान दे दे, तू तो फिर जिंदा हो जाएगा, तू इसके लिए जान दे दे। तो इसका मतलब है जो भाई अपने दूसरे भाई के लिए जान देगा तो उनका आपस में क्या रिश्ता है? मियाँ बीवी का नहीं है, भाइयों का है। इसका मतलब है कि भाई भी अपने दूसरे भाई के लिए इतनी मोहब्बत के जज्बात रखता है कि वो उसके लिए जान दे देता है। तो ये कहाँ है? ये दुनिया में कहाँ? ये किसने सीखा और कहाँ से सीखा गया और कहाँ से सिखाया जा रहा है कि जो जान देता है वो शौहर है और जिसके लिए जान दी जा रही है वो बीवी है। यानी यीशु मसीह जो जान दे रहे हैं वो दुल्हा है, वो शौहर है, और जिसके लिए जान दी जा रही है वो बीवी है। ये बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं है। अब हम देखते हैं, अगर उस भाई का कोई भाई नहीं है लेकिन उसकी बहन है, तो क्या बहन अपने भाई को बचाने के जज्बात ना रखेगी? क्या वो उसके लिए जान ना देगी? तो अगर वो उसके लिए जान देती है और उसके जान देने से उसका भाई बच जाता है, तो दोनों का आपस में क्या रिश्ता हुआ? बहन और भाई का पाक रिश्ता है। हर रिश्ता पाक है। माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, बहन भाइयों का बहन भाइयों के साथ, भाई का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, मियाँ का बीवी के साथ, बीवी का मियाँ के साथ। ये रिश्ते कहाँ से आए हैं? खुदा से आए हैं। खुदा ने बनाए हैं, दुनिया खुदा ने बनाई है, खुदा ने कलाम से दुनिया बनाई है, इसलिए ये रिश्ते हैं और ये सारे रिश्ते पाक हैं। और इन तमाम रिश्तों में मोहब्बत का उन्स, जज्बा और इखलाक पाया जाता है। जब हम अपनों को किसी भी रिश्ते में, वो बीवी है, वो बच्चे हैं, वो शौहर है, वो माँ बाप हैं, वो औलाद है, तो हम लोग जो रिश्ता खुदा ने हमें दिया है उसके अंदर मोहब्बत होती है। उस मोहब्बत की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए जान भी देनी पड़े तो दे देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि मेरी औलाद की बीवी नहीं है इसलिए ए बेटा मैं तुझे नहीं बचा सकता, अपनी बीवी बना और उसको कहते लिए जान दे। अगर बेटी है तो उसे कहें कि नहीं, बाप कहे नहीं मैं तेरे लिए जान नहीं दे सकता क्योंकि तू शौहर नहीं रखती, शौहर रख और उसको कह तेरे लिए जान दे तो तू बच जाएगी, क्योंकि मेरा तेरे साथ बाप वाला रिश्ता है, मैं तेरे लिए जान नहीं दे सकता क्योंकि सिर्फ शौहर दे सकता है। ये कहाँ पर है? ये हरगिज नहीं है। इसका मतलब है यीशु मसीह का जान देना ये हरगिज शो नहीं कर रहा, जाहिर नहीं कर रहा कि यीशु मसीह शौहर की तरह पूरी दुनिया के लिए जान दे रहे हैं और ये दुनिया जो है वो क्या है? बीवी है।
अब बाइबल मुकद्दस हमें इस दुनिया के लिए क्या बोलती है, जैसा कि मैंने शुरू में बयान किया कि यूहन्ना ने ये प्रोफेसी की, नबूवत की कि दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और दुनिया के गुनाह यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जिस दुनिया का गुनाह मैं जान दे कर उठा ले जाता हूँ, वो दुनिया मेरे लिए क्या है। 13वीं आयत, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। यहां पे लिखा है दोस्तों के लिए। पहली बात है, यहां पे जमा का लफ्ज है, दोस्त नहीं कहा, पूरी दुनिया को दोस्त नहीं कहा गया, पूरी दुनिया के लोगों को दोस्तों बोला गया है। हमें ये बात भी समझ होनी चाहिए कि खुदावंद कहाँ पर वाहिद इस्तेमाल करते हैं और कहाँ खुदावंद जमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दुनिया को, जितने भी दुनिया को जब दुनिया कहा गया और दुनिया के अंदर के लोगों को जब भी मुखातिब किया गया तो किसी एक वाहिद के लफ्ज के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया और नहीं बयान किया गया, बल्कि जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि लोगों को लोगों कहा गया है और इंसानों को दोस्तों कहा गया है। तो जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कोई एक वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल इंसानों के लिए नहीं किया गया। ये मैं वाज़ेह तौर पर इसलिए इस टाइम बयान करी क्योंकि आगे को हम इस कलाम को भी सीखेंगे कि जहां जहां जो पास्टर्स हैं इस वाहिद और जमा के लफ्ज को नहीं समझती, सिंगुलर और प्लूरल के वर्ड को नहीं समझ पा रही और जहां मर्जी जो मर्जी सिखा देते हैं। जब यहां पर लिखा है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह खुद गवाही दी है कि तुम सब जिनके लिए मैं जान दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि तुम लोग मेरी बीवियां हो और मैं तुम लोगों के लिए जान दे रहा हूं। मैं बीवियों का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं। बीवी और बीवियों के लफ्ज में वाहिद और जमा का फर्क है। तो कलीसिया में खुदावंद वाहिद का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, खुदावंद जमा का वर्ड इस्तेमाल करें, दोस्तों, बीवियों कहीं नहीं बाइबल मुकद्दस में लफ्ज लिखा एक शौहर की बीवियों। हमें यह बात समझ आ जानी चाहिए। अब यहां पे जो लफ्ज लिखा है वो लिखा है दोस्तों। अब जब हम दुनिया में से पहले सीखते हैं ताकि हम खुदा के कलाम को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ जाएं। अब अगर कोई बच्चा, कोई इंसान यतीम हो जो उसके लिए कोई जान नहीं दे सकता, कोई उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसको मुहैया नहीं करता, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अगर माँ बाप नहीं है, किसी के बहन भाई नहीं है और वो बच्चा यतीम है और उसका कोई नहीं है, तो फिर गैर आके उस पे अगर उतना ज़्यादा तरस खाता है और उसको पालता पोसता है, संभालता है, उसको प्रोवाइड करता है, उसको मुहैया करता है, खाने पीने को, रहने को देता है, उसको कपड़े जूता सब कुछ देता है और फिर उसको पढ़ाता है, उसकी ज़िंदगी को संवारता है, उसको सब कुछ देता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोस्त जो है वो उसका शौहर है। और अब मैं, क्योंकि इसने मुझे संभाला है, इसने मेरे पे तरस खाया है, अब ये मेरा शौहर है, मैं तो इसकी जान नहीं छोड़ूंगी, ये मैं अपना दूल्हा बना के ही छोड़ूंगा। ऐसे क्या कहोगे? यही कहा जाएगा कि इसने इस पर तरस खाया और ऐसी मोहब्बत रखी कि इसको संभाला, इसको जिंदगी दी। अब खुदावंद यीशु मसीह हम यतीमों को, हमारा बाप नहीं है, मगर मसीह यीशु के वसीला से खुदा बाप अब हमारे बाप हैं। आमीन। लेकिन जब हम गुनाह में थे और जब हम पैदा किए जाते हैं, क्योंकि खुदा रूह है और हम जब तक रूह से नहीं पैदा होंगे तो हम लोग यतीम हैं। ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करी डिटेल में, लेकिन हमने ये अभी, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है, हम इसको इतना ही सीखेंगे कि हमारी रूहें जो हैं उनके ऊपर किसी की सरपरस्ती नहीं, हम किसी की औलाद नहीं है, हमारा रूह में कोई भी बाप नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या हुए? यतीम हुए। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से, यीशु पर ईमान रखने के वसीला से खुदा बाप जो हैं वो हमारे बाप
हैं। आमीन। अब हम ये देखते हैं कि हमारी रूहें और हम इंसान जो हैं जिस्मानी तौर पर ज़रा अपने, क्योंकि पिछले कलाम में मैंने बताया कि जो जिस्मानी है, क्योंकि ज़मीन पर हम बो के कुछ नहीं काटा, जिस्म में जितने भी हमें रिश्ते मिले वो सब के सब मुफ्त मिले हैं। इसी तरह लेकिन रूह में हमें कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा जब हम क़यामत यानी जी उठेंगे उसके बाद। अब हम लोग रूह में यतीम हैं, हमारा कोई वाली वारिस नहीं, हमें कोई संभालने वाला नहीं, हमें कोई बचाने वाला नहीं, हम पे कोई तरस खाने वाला नहीं। जब बाप ही नहीं, माँ नहीं, बहन नहीं, जब भाई नहीं, तो किसने मोहब्बत के जज्बात हमारे पर उंडेल कर हमें संभालना है, पालना है, पोसना है, प्यार करना है, शफकत देनी है, रहम करना है, तरस खाना है और हमें बचाना है? किसने? किसी ने भी नहीं, क्योंकि हम यतीम हैं। अब उन यतीमों के लिए खुदा बाप ने, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा ने मोहब्बत दिखाई, खुदा ने हम यतीमों पर नज़र की, उनको हम पर तरस आया और उन्होंने अपने बेटे को हमारे लिए जान देने भेज दिया। अब यीशु मसीह कह रहे, मैं तुम यतीमों के लिए जान देने आया हूं और मैं तुम लोगों को बचाने आया हूं, क्योंकि मेरा बाप मोहब्बत है, वो तुमसे मोहब्बत रख रहा है और तुम्हें इस मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं आया हूं और मैं तुमसे मोहब्बत रख रहा हूं, क्योंकि मैं मोहब्बत के ऐसे जज्बात रख रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मर जाओ, तो तुम्हारे एवज मैं मरता हूं। तो हम लोग उठ के, जो यतीम हैं, वो उठ के ये कहना शुरू हो जाए, क्योंकि इसने हमारे लिए जान दी है, ये हमें प्यार करता है, इसने हमें पाला है, इसने नई जिंदगी दी है, ये आसमान से हमारे लिए हमें बचाने आ गया, मैं तो इसी के साथ शादी करूंगा, हम सब अब इसी के साथ शादी करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा दुल्हा बन गया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता हूं, लेकिन तुम लोग रिश्ते में मेरे दोस्त हो। और जान देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक रिश्ता रह गया है, क्योंकि हमारे जहनों में फतूर भरा हुआ है, हमारे जहनों में क्लैरिटी नहीं है, हमारे जहनों में सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि हमने कलाम मुकद्दस में दुल्हा का लफ्ज़ पढ़ लिया और उस दुल्हा का लफ्ज़ को हमने अपने अंदर बसा लिया कि वो दुल्हा है, तो हम ही यकीनन जो इंसान है, वो कलीसिया जो ईमानदार हैं, वो दुल्हन होंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बाइबल मुकद्दस हमें ऐसा नहीं सिखाती, क्योंकि हमने कलाम मुकद्दस से ही सीखना है। कलाम मुकद्दस हमारा आईना है, वो हमें साफ साफ बताता है, सिखाता है और समझाता है। और यहाँ पर जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो हमारे सामने है, और वो है दोस्त। दोस्तों का आपस में सबसे बड़ी पहली बात है, रिश्ता क्या होता है? कोई रिश्ता नहीं होता, मुंह भले भाई भी नहीं होते, सुतेले भाई भी नहीं होते। क्या रिश्ता होता है? खूनी रिश्ता नहीं होता, कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं होता। क्या होता है? और जब हम लोग तरह तरह की बातें ये सुनते हैं कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है, तो यीशु मसीह ने यहाँ पर ऐसा कोई गहरा रिश्ता, कंप्लीट रिश्ता इंसानों के साथ नहीं बताया। सिर्फ तरस और रहम और मोहब्बत यहाँ पे लिखा है कि जो मैं जान तुम्हारे लिए देता हूँ वो इसलिए देता हूँ, 13वीं आयत का शुरू पढ़ूंगी, इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता। ये मोहब्बत है, सिर्फ रिश्ता नहीं है। और मोहब्बत कहीं भी हो सकती है, किसी के दरमियान भी हो सकती है, और उस मोहब्बत के जज्बात में आप दूसरों के लिए कुर्बानी छोटी दो, बड़ी दो, ज़्यादा दो, जान ही दे दो। ये आपकी अपनी मोहब्बत पर है कि आप दूसरे शख्स से कितनी ज़्यादा मोहब्बत रखते हो। यीशु ने कहा कि कोई शख्स इतनी मोहब्बत नहीं रखता, मैंने तुम लोगों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखी है कि अपनी जान तुम दोस्तों के लिए देता हूं। तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरा तुम लोगों के साथ ये रिश्ता बनता है। बेशक मैं जान दूं,
बाप जान दे तो वो बीवी नहीं बन जाता, माँ जान दे तो खुदा ना करे इस तरह की बात मैं नहीं मुंह से निकालूंगी, भाई भाई के लिए जान दे तो वो बीवी नहीं बन सकता। इसको तो लौंडेबाजी करेंगे, जिससे हम लोगों का कलाम पाकीज़गी वाला कलाम पाक कलाम हमें मना करता है। लेकिन इस वक्त कलाम को सीखने की बजाय और कलाम मुकद्दस में से देखने की बजाय और आयतों को देखने की बजाय और यीशु मसीह की दी हुई तालीम को देखने की बजाय इंसानों ने और पास्टर्स ने खुद से अपने मतलब निकाले हुए हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की दूसरी आयतों के साथ कॉन्ट्रोडिक्शन करता है। जो कलाम कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा करता है वो तालीम ठीक नहीं है। अगर वो तालीम दूसरी आयत के साथ बिल्कुल ठीक बैठे समझाने में, तालीम देने में, तो इसका मतलब वो तालीम ठीक है। लेकिन अगर वो तालीम जो सिखाई जा रही है हमारे दूसरे कलाम से मैच नहीं करती, हमारी बाइबल मुकद्दस की आयतों के साथ आपस में मैच नहीं करती, तो वो तालीम ठीक नहीं है। तो जब हम ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद का जान देना, हरगिज ये नहीं बयान करा कि जान देने वाला शौहर ही है और उसी की जिम्मेदारी है, ऐसा हरगिज नहीं है। और जिसके लिए जान दी जा रही है वो रिश्ते में उसकी बीवी ही होगी, और अगर उसके लिए जान दे दी है तो फिर जबरदस्ती करना शुरू कर दो कि नहीं, चूंकि तूने मेरे लिए जान दी है मैं तेरी बीवी ही हूं। ऐसा नहीं है, ये तो जबरदस्ती है। यीशु मसीह कह रहे तुम मेरे दोस्त हो जिनके लिए मैं जान देता हूं, और दुनिया के लोग दोस्तों से बढ़कर रिश्ता यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती करना शुरू हो गए हैं, मनमानियां करना शुरू हो गए हैं। हम इसको मज़ीद खुदा के कलाम में से देखते हैं। हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 49 और 50th वर्स। और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ा कर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। आमीन, खुदा का शुक्र है। इस कलाम में वाज़ेह तौर पर खुदावंद ने शागिर्दों की तरफ इशारा किया है, शागिर्दों की तरफ इशारा किया है। और जो शागिर्द हैं अगर वो कलीसिया में अहमियत नहीं रखते तो अब की कलीसिया फिर मैं कहूँगी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर वो वाली कलीसिया जिनके साथ खुदावंद ने काम शुरू किया, जिन पर खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ रख कर बरकत देकर और सारी रात दुआ करके खुदावंद ने जिनको चुना और जिन पर मुहर की कि इनमें से एक भी जान जो है वो ज़ाया ना हो और गुमराह ना हो, जिनके लिए खुदा ने दुआ की खुद से और जिनको खुदावंद ने बरकत दी और खुदावंद ने जिनको खुद खिदमत सौंपी, और जिन लोगों ने और जिन शागिर्दों ने जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने खुद चुना, उन्होंने कैदें काटी, मारे खाई, जानें दी, कुर्बानियाँ की, अपना घर बार छोड़ दिया। अगर वो शागिर्द सिर्फ शागिर्दों की तरफ इशारा करके खुदावंद यीशु मसीह उनको बीवी नहीं कह रहे, तो फिर बाकी वाले लोग क्या हैं? अगर वो बीवी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पॉइंट आउट करके उनकी तरफ इशारा करके बीवी का लफ्ज़ यहाँ पर नहीं बोला। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं 50वीं आयत पढ़ूंगी, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और बहन और माँ है। बहन भी बोला, बहन, भाई, माँ, ये वो वाले रिश्ते बोले जिसमें बीवी का कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें बीवी का ताल्लुक नहीं है। माँ इसलिए बोला क्योंकि उस वक्त उसकी माँ वहाँ पर जिस्मानी तौर पर जो खुदावंद यीशु मसीह को इस ज़मीन पर रूल कुद्स के वसीला से पैदा करने का वसीला बनी, वो वहाँ पर मौजूद थी। इस वजह से उन्होंने माँ का वर्ड रिपीट किया। लेकिन जो बाकी लफ्ज़ थे वो थे भाई और बहन, दो लफ्ज़। भाई और बहनों का ताल्लुक एक आदमी के साथ कितना को हो सकता है?
कितना गहरा, कितना कंप्लीट और क्या, ये हम सब हर कोई इस दुनिया में जो खुदा ने ज़िंदगी हमें बख्शी है उसे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को भाई और बहन बोला। उसमें मरियम मगदलीनी भी बैठी होगी, जो आजकल बहुत ज़्यादा पीक पर बात चली जाती है कि मरियम मगदलीनी जो है, हो सकता है वो यीशु मसीह की बीवी हो, दुल्हन हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर जितने मौजूदा लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भाई और बहन बोला। इसका मतलब है कि उस टाइम की जितनी भी औरतें थीं वो खुदावंद यीशु मसीह की बहनें थीं। और ये मैं नहीं कह रही, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इस बात से ये बात क्लियर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या रिश्ता दिया और शागिर्दों को क्या पॉइंट आउट किया। ये खुदावंद, और वो जो शागिर्द हैं वो मजबूत कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। तो जो पतरस था उसने अपने जो बाकी शागिर्द थे उनको साथ लेके चला, और जो उनके अलावा आए, उनके आगे आए, उनको साथ लेकर वो चलता था। और ये लोग एक कमरे में या एक जगह पर बैठते थे और डिसीजंस लेते थे कि क्या करना चाहिए। वहां पर सब मौजूद होते थे और खुदावंद ने उन सब के ऊपर पतरस को लीडर बनाया। अब जो पतरस और बाकी लोग हैं, यानी जो शागिर्द हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो लोग हो, तुम जो शागिर्द हो, तुम जो कलीसिया हो। अब यहां पर यीशु मसीह ने शागिर्दों को शागिर्द बोला और खुदावंद ने इन शागिर्दों को कलीसिया बोला। अब ये कलीसिया, ये शागिर्द क्या है खुदावंद यीशु मसीह के? भाई और बहनें। आमीन। तो फिर किस तरह से जो शागिर्द है, कलीसिया है, वो दुल्हन का लफ्ज मैं हरगिज यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने यहां पर कोई गवाही ऐसी नहीं दी, और ना यीशु मसीह ऐसी गवाही किसी शागिर्द के लिए, किसी मरियम मगदलीनी के लिए देकर गए, क्योंकि कलाम जो है वो कंप्लीट है और खुदावंद यीशु मसीह ने कंप्लीट कलाम दिया है। जब खुदावंद का कलाम क्लियर है और उस वक्त के ज़माने के लोगों को खुदावंद ने क्या बोला? मेरे भाई और बहन। और उस वक्त के जो लोग हैं वो इतने मजबूत हैं, और अब की जो कलीसिया है वो कितनी को मजबूत है। अगर वो दुल्हन नहीं है यीशु मसीह के बकौल, तो अब की कलीसिया भी दुल्हन नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ने शागिर्दों को दोस्त भी बोला है, खुदा ने शागिर्दों को बहन भाई भी बोला है। लेकिन ये बात क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखी है कि खुदावंद यीशु मसीह की शादी है, तो इसका मतलब है, लेकिन शागिर्दों कलीसिया के साथ हरगिज नहीं है। लेकिन चूंकि मैं पिछले कलाम में भी यही बोला, लेकिन शादी है, इसका मतलब है कि शादी है, लेकिन किसके साथ है? एक ही के साथ होगी, क्योंकि खुदा ने हमें एक ही पसली निकाल कर आदमी को इजाजत दी, तो वो अपने बेटे को बहुत सी औरतों के साथ शादी करने की, और आदमियों के साथ, मर्दों के साथ और बच्चों के साथ, क्योंकि कलीसिया में ये सब लोग मौजूद होते हैं, बूढ़े और बूढ़ियां भी मौजूद होती हैं, शामिल होंगी जो यीशु मसीह पर ईमान रखेंगी। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि खुदा अपने बेटे को ये कहें कि तू आदम के लिए मैं एक पसली का कानून है, मगर ऐ मेरे बेटे, क्योंकि तू मेरा बेटा है तो मैं नाइंसाफी करूंगा, मैं बेईमानी करके तुझे सारे लोग दे देता हूं ताकि तू क्या करे? इन सबको अपनी बीवी रख ले। हरगिज नहीं। हमारा खुदा जो कल कहता है वो आज भी कहता है और वो अब तक भी वही कहता है। खुदा का कलाम नहीं बदलता। उन्होंने एक बीवी कहा है तो एक ही है। कलीसिया बीवी नहीं हो सकती, क्योंकि वाहिद और जमा में फ़र्क है। ये हम बाद में देखेंगे। आज के खुदावंद के कलाम के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ, और सब सुनने वाले को खुदावंद बहुत बरकत दे। आमीन, हालेलुया। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अगले सबत के दिन। हालेलुया।